Hi everyone, in this video I will cover the Global Gender Gap Report of 2025 which is recently being released by World Economic Forum, and it is a very important report for multiple exams, so it can help you in your descriptive as well as in one day competitive exams. So rank is important, what are the parameters is there, what is this all about, that I will cover in this report. See, if you want to cover it very comprehensively, then watch the complete video. But if not, you can do what? Skip to the end. There I have discussed only a one-pager note where I'll give just a details. Okay, I'll not explain it, I'll give a details. So if you want details only, so you can skip to the end. If you want it to cover comprehensively, then bear with me throughout the video. Okay. So let's begin. Just a second. So what this report is all about. See how you can link it. If you want to link it, you can link it to SDG goal, which is 5 gender equality, women led development. इसमें ऐसी बहुत सारी बातें बताई गई हैं जो आप वुमेन लेड डेवलपमेंट में या वुमेन से रिलेटेड इश्यू को बहुत आसानी से इस पे कवर कर सकते हो. यहाँ से आपको अच्छा फॉर्डर मिलेगा टू राइट योर डिस्क्रिप्टिव. So it can be relevant for many of the GS papers. You can link it. Even in your essay paper, you can link these things, right? Because it's talk about a very huge number of data or a huge number of the lines they give. That's you also can use. तो वो सारी चीजें हम देखेंगे. So I'll try to cover this report with respect to the world and with respect to India. So what dimension you should read? See, पहले तो ये पता होना चाहिए ये रिपोर्ट है क्या, इसको रिलीज कौन करता है, कब कब रिलीज करता है, इसके पैरामीटर्स क्या हैं. ओके. दूसरा, वर्ल्ड पे रैंक किसकी ज्यादा है, ठीक है, और रीजनल लेवल पे थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए. इंडिया की रैंक क्या है, उसके इन पैरामीटर्स पे उसका प्रोग्रेस क्या है, उसके नेबर्स का प्रोग्रेस क्या है. ओके, उसका नेबर का प्रोग्रेस क्या है, और कुछ पैरामीटर या सजेशन जो वर्ल्ड के रिस्पेक्ट पे आप दे सकते हो, इंडिया के रिस्पेक्ट पे दे सकते हो, या इंडिया की गवर्नमेंट इस पे क्या एफर्ट्स ले रही. सो दैट्स वी कैन कवर इट. ओके, सो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट. सी, टू रिमेम्बर एनी रिपोर्ट यू शुड डू व्हाट, कि आप उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से जोड़ लीजिए. जैसे कि ये रिपोर्ट है, उसी तरह आपकी स्कूल की रिपोर्ट्स होती है, राइट. तो ट्राई टू रिमेम्बर एट इट एज लाइक कि कोई एक रिपोर्ट है, वर्ल्ड की रिपोर्ट रिलीज हुई है जो आपको कुछ सजेस्ट करेगी. जैसे आपका रिपोर्ट आपके बारे में बताता है, उसी तरह ये रिपोर्ट किस चीज के बारे में बताता है वो हम देखेंगे. तो टॉक अबाउट जेंडर गैप. ठीक है, तो जैसे हमारा रिपोर्ट कार्ड है, हमारा रिपोर्ट कार्ड हमारे बारे में बताता है, हमारे एकेडमिक्स के बारे में बताता है, राइट. हमारे को करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में बताता है, हमारे बिहेवियर के बारे में बताता है, हमारे अचीवमेंट्स के बारे में बताता है. तो ये रिपोर्ट भी वही करेगा, वर्ल्ड के किस किस की अचीवमेंट, किस किस के गैप्स को बताएगा. तो पहला तो नाम ही है इसका कि ये रिपोर्ट कैसी रिपोर्ट है. इट्स टॉक अबाउट जेंडर गैप. जेंडर गैप मतलब there is a female and there is a male. See, it's not about the feminism. Please do not go into that direction. Okay, please judge this report with a fair mind. Okay, because you have to use in your exam in any ways. Okay, don't go into in a negative zone of like it is a manipulation or something, or it is like thing. Don't go into that. Just be here. So there is a female and there is a male. So it's talk about the gap between them with respect to the living standard. Okay, because we know that world is a patriarchal society, है ना. वो बहुत सालों से patriarchal सेंस में ही चली जा रही है, and there is not a proper opportunity is being given to the women. So जैसे preamble में लिखा है justice,
what kind of a justice they want, social, economic, political. वैसे ही इनके लिविंग स्टैंडर्ड में गैप आ रहे हैं किस रिस्पेक्ट पे? एजुकेशन हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, राइट? सो दैट्स व्हाट इट टॉक अबाउट. तो ये रिपोर्ट है क्या? इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट या ग्लोबल इंडेक्स, जेंडर गैप इंडेक्स. कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, सो यू शुड रिमेम्बर इट. कब कब रिलीज करता है? एनुअली करता है. जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड एनुअली आता है और फॉर क्वार्टरली भी आता है, राइट? तो यू शुड रिमेम्बर एनुअली, बाइनली, 3 years के बाद कोई रिपोर्ट आती है तो यू शुड रिमेम्बर कि ये एनुअली आती है बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. कब से निकाली जा रही है? सिंस 2006 से इस रिपोर्ट को रिलीज किया जा रहा है थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन. इस बार इसने 148 कंट्री का डेटा कलेक्ट किया है. एवरी टाइम इट डज नॉट कवर दी 148 कंट्रीज. कभी कभी कम होती है, कभी कभी ज्यादा होती है. जैसे लास्ट ईयर 147 थी आई गेस, जो सूडान था जो लास्ट में था. ठीक है, इस बार कौन है लास्ट में? I'll tell you, and you will be see that the country which is used to tell the society that we are in a very highly in economic position, तो वो अपने आप को बहुत बड़ाई कर रहा था. अभी उसका ग्लोबल जेंडर गैप देखेंगे, so you will see and shocked to see that. Okay, so this is 148 countries total और इंडिया की रैंक इसमें क्या आई है? 131. So it reflect that somewhere down the line we are not in a good position according to this report. See, if you are quoting some report in your answers, so it is a word, right? तो वो हर चीज तो कैलकुलेट नहीं करता होगा ना, हर चीज का पैरामीटर वो सही से नहीं ले पाता होगा. सो यू हैव टू बैलेंस इट आउट थ्रू योर इंडियन रिपोर्ट्स, ओके, और इंडियन डेटास. Because that is also doing something good, right? So you should not forget that, but don't say that it is a manipulator or something kind of don't go into the negative zone of it कि ये तो यूरोपियन वर्ल्ड निकालता है तो अच्छा होगा या नहीं पता नहीं. ठीक है, so don't go into that. So objective मैंने आपको बता दिया, just not clear cut defined objective, but you should remember that it is gender gap. तो वो ट्रैक कर रहा है ये सारी चीजें, चेंजेस बिटवीन दिस थिंग, सो दैट वुमेन और मेन दोनों इक्वल पोजीशन पे आ जाए. ठीक है, एंड इट इज सेड कि ये जब इक्वालिटी आनी होगी, ये जब डिस्पैरिटी कम होगी, ये कब तक हो पाएगा? ये अराउंड 123 years के बाद पॉसिबल होगा. तो कैन यू इमेजिन दैट कि 123 years लगेंगे हमें इस तरह की डिस्पैरिटी को खत्म करने के लिए. तो सोच सकते हैं आप कितनी डिस्पैरिटी होगी अगर कंट्रीज में डिस्पैरिटी है या हमें रैंकिंग्स मिल रही हैं, हमारा रिपोर्ट कार्ड बन रहा है. तो उस रिपोर्ट कार्ड बनने के लिए कुछ तो पैरामीटर्स होते होंगे. जैसे हमारे लिए क्या है, हमारे हिंदी में कितने आए, मैथ्स में कितने आए, ठीक है, इंग्लिश में कितने आए, तो हमारे सब्जेक्ट्स देखे जाते हैं, हमारे को करिकुलर एक्टिविटीज देखी जाती है. उसी तरह से इधर भी 4 डायमेंशंस को देखा जाता है. 4 की डायमेंशंस आर चेक्ड, वो अभी डिस्कस करेंगे. ठीक है, एंड इन दैट 4 डायमेंशन दे आर 14 इंडिकेटर्स. तो आपको 14 याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये 4 आपको याद होने चाहिए क्योंकि 4 आप इससे लिंक कर लोगे. तो देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम विद लर्निंग दैट थिंग. ओके, अब जैसे रिपोर्ट कार्ड में हमें स्कोर मिलते हैं, राइट? तो इसमें स्कोर कहाँ से कहाँ मिलते हैं? 0 से 1. तो कंट्रीज को 0 से 1 के बीच में नंबर्स दिए जाते हैं. एंड दिस अगर 1 आता है तो जैसे टॉपर होता है, तो उसका मतलब है कि उसने टोटल फुल पैरिटी, इट अचीव द फुल पैरिटी. ओके, और परसेंटेज में भी होता है, जैसे हमारे फुल नंबर्स होते हैं और परसेंटेज में भी होता है. 0 to 1, 0 to 100%. ये वाले फुल पैरिटी, दिस वाले नो पैरिटी. That is inequality and the gap is very wide and one. Okay, so ये perfect equality लाना, it is a very difficult task. So you can go and read this report by yourself as well. Okay, index में देखो आपके ये सब रहता है. So
don't go into that. Just read the key highlights from the report. You can do by yourself as well. Okay. So अब वो 4 डायमेंशन क्या है? सपोज इट लाइक, थिंक इट लाइक अ चेयर. किसी चेयर के क्या होते हैं? 4 पिलर होते हैं. उसी तरह इस चेयर के 4 पिलर हैं, 4 की डायमेंशन है जिसके बेसिस पे कंट्रीज को जज किया जाता है. वो क्या है? इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी. सबसे बड़ी चीज है ना कि एक वुमेन को और मेन को कितनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, पार्टिसिपेशन कैसा है, वर्ल्ड हमारे जॉब्स कैसी हैं. ठीक है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, लड़कियों को जॉब मिल भी रही है या नहीं. एजुकेशन अटेनमेंट, पढ़ाई के लेवल पे कितना है, किस स्टेट में ज्यादा है, किस में कम है, ये हम तो दिखाते रहते हैं ना, इंडिया की सारी रिपोर्ट्स में आता रहता है. सो दैट व्हाट इज दिस. हेल्थ के सेक्टर में इंडिया क्या है? तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, जैसे हमारा अधिनियम बिल आ जाएगा तो हम 1/3 अपॉर्चुनिटीज वुमेन्स को दे देंगे. तो ये सारी चीजें ये रिपोर्ट डिस्कस करता है. इस रिपोर्ट के थ्रू आप वो आंसर्स लिख सकते हो. सो व्हेन कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि व्हाई देयर इज अ जेंडर गैप, जेंडर डिस्पैरिटी, तो वुमेन के लिए क्या डेवलपमेंट, किस पे फोकस करना चाहिए, तो आप इनकी डायमेंशंस को याद रख के आप अपने आंसर्स लिख सकते हो. यू डोंट नीड टू गो पेस्टल अप्रोच एंड अदर अप्रोच. जब आप ऐसी डायमेंशंस याद कर रहे हो तो उन्हीं के थ्रू लिख लो, राइट. You do not go into the other reports. You do not need to go the other direction. You can use such kind of a folder as well, right? So let's begin. अब रिपोर्ट क्या क्या कहती है, स्टार्टिंग से सारी चीजें आप नोट कर सकते हैं. ओके, या एंड की वीडियो स्किप करके वहां देख सकते हैं सारा कुछ. ओके, पहली चीज ये रिपोर्ट कहती है कि देयर इज अ स्टिल अ लॉन्ग रोड अहेड. जैसे रेस होती है ना, तो इट इज लाइक समथिंग इज, लोग क्या सोचते हैं कि दिस थिंग, द जेंडर पैरिटी इज लाइक काइंड ऑफ अ स्प्रिंट, कि हम ये करेंगे और पहुंच जाएंगे. नो, इट्स लाइक इट बिकम अ मैराथन फॉर द कंट्री टू रीच दैट, क्योंकि वो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं उस जेंडर पैरिटी को, डिस्पैरिटी को खत्म ही नहीं कर पा रहे. तो वही रिपोर्ट कह रहा है कि इट इज स्टिल लॉन्ग अहेड. तो आप ये कंक्लूजन में लिख सकते हो, कहीं लिख सकते हो, ऐसे में लिख सकते हो कि स्टिल इन द वर्ल्ड देयर इज अ डिस्पैरिटी एंड देयर इज स्टिल अ लॉन्ग रोड अहेड, बिकॉज अकॉर्डिंग टू ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट it will take us 123 years away, because we are still far away from this to reach the full disparity. तो 123 लगेंगे. पिछले साल जब आया था ये 134 था. पिछले साल का स्कोर 68.5% था और इस बार 68.8% है. यू कैन रिमेम्बर. ओके, देखो थोड़ा सा परसेंटेज है. अभी कैसे कैलकुलेट करते हैं तो दैट्स नॉट योर कंसर्न कि फॉर्मूला क्या है क्या नहीं है. तो इट्स अ वेरी ह्यूज टास्क फॉर देम टू कैलकुलेट सच थिंग्स. ओके, तो कह रहा है कि 68.4 है और 31% स्टिल गैप इज ओपन. दैट मीन्स अभी भी डिस्पैरिटी है, वो बता रहा है. और अगर इस स्पीड से चले तो अगर हमें थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ी तो बढ़ा सकते हैं, बिकॉज वी आर नॉट रीचिंग बाय 230. जैसे SDG गोल हमारे 230 तक है, राइट, बट वी आर स्टिल फार अहेड, फार बिहाइंड और फार अवे फ्रॉम दिस, बिकॉज 123 ईयर्स लगेंगे वहां पहुंचने के लिए. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग कि ये ग्लोबल का डेटा पॉइंट है. 123 ईयर्स लगेंगे, अभी भी 31 का वो है. ठीक है, अब उन सब इंडेक्स के स्कोर्स क्या हैं? सी, आई हैव टोल्ड यू पैरिटी क्या है. पैरिटी इज मतलब टोटल इक्वालिटी, राइट, बिटवीन दिस टू जेंडर्स. तो यहाँ पे जो 4 पिलर्स हैं, ये 4 पिलर्स अगर बराबर नहीं हुए तो ये चेयर भी खड़ी नहीं हो पाएगी, राइट. यू विल नॉट एबल टू सिट, बिकॉज देयर विल बी, अगर एक पिलर हटा दूं मैं, एक इसका पायदान हटा दूं, तो आप नहीं बैठ पाओगे, राइट, गिर जाओगे. उसी तरीके से दुनिया गिर जाएगी अगर ये चारों बैलेंस नहीं हुए. तो
उसको यू कैन लिंक इट लाइक दिस। सो बोला है कि टोटल तो 68.8 है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, मान लो कि ये पिलर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कहाँ तक पहुंचे हैं, 61। एजुकेशनल अटेनमेंट 95, इट्स अ वेरी गुड थिंग, राइट। हेल्थ 96.2, इट्स अ वेरी गुड साइन। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट 22.9। सो अभी भी पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में 22.9 ही परसेंटेज हम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे पाए हैं वुमेन्स को। तो दैट इज अ वेरी कंसर्न, और यहाँ पे भी कंसर्न है इकोनॉमिक। इन दो रिपोर्ट से आपको एक पता चला, सॉरी इस स्लाइड से आपको ये पता चला कि टोटल क्या था, ठीक है। इन चारों का इंडेक्स और क्या है, इसमें ये सबसे बढ़िया चल रहा है, ये नियरली पैरिटी की तरफ है। प्रॉब्लम किस पिलर्स में है, इन दो पिलर्स पे। तो हमें वर्क किसके पे करना पड़ेगा, इन दो पिलर्स पे वर्क करना पड़ेगा। सी, तो लार्जेस्ट जेंडर गैप इज वेयर, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज। ओके, तो अगर आपका कोई भी लेग वीक होगा, इस चेयर का अगर वीक है ना, सी आई हैव कनेक्टेड विद द एनोलॉजीज कि आप उसे याद रख पाए कि ये 4 लेग्स हैं और इस पे ये सिंबल्स आए। अब हम इंडिया का भी स्कोर देखेंगे, इंडिया की इंप्रूवमेंट देखेंगे, क्योंकि आरबीआई की रिपोर्ट में, सॉरी इन आरबीआई एग्जाम दे हैव आस्क्ड कि इंडिया इम्प्रूव्ड इन एजुकेशनल एंड डिड नॉट अचीव और फेस चैलेंजेस इन डैश एंड डैश एरिया। तो ये सब पता होना चाहिए। तो ये 4 पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रिमेंबर करने के लिए। ओके, सो दैट्स व्हाट यू नीड। नाउ टाइम टू रीच पैरिटी से सिंपली, ये तो हम नियरली पैरिटी है। इकोनॉमिक के लिए 135 ईयर लगेंगे, पॉलिटिकल के लिए 162 ईयर लगेंगे और टोटल 123 ईयर्स लगेंगे। सो सी this, you do not need not to go into much detail, but you have to analyze and कहाँ पहुंचा सकते हो। इसकी एनालॉजीज ये भी कह सकते हैं कि हमने हेल्थ तो दे दी वुमेन्स को, हमने एजुकेशन तो दे दिया, पर हम पोजीशंस नहीं दे रहे, हम सीईओ पोजीशंस नहीं दे रहे, हम बड़ी बड़ी कंपनीज में पोजीशंस नहीं दे रहे, उन्हें सॉफ्ट जॉब दे रहे हैं, कि सॉफ्ट डिपार्टमेंट्स दे रहे हैं, जैसे कि दीज आर वर्ड्स like education, health, we are giving them, we are not giving them financial right। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, राइट, शी इज अ फाइनेंस मिनिस्टर, हमारा प्रेसिडेंट वुमेन है। सो दैट्स रिफ्लेक्ट कि हम तो अच्छे डायरेक्शन में है या नहीं, ये हम कोशिश तो कर रहे हैं। सो वी आर डूइंग दैट। तो ये चीज रिफ्लेक्ट कर रहा है कि, और ये सारी लाइंस इट्स फ्रॉम द रिपोर्ट्स ओनली, कि वी हैव गिवन दिस, बट हम उनको पोजीशंस नहीं दे पा रहे, हम पॉलिटिकल एम्पावर नहीं कर पा रहे, ठीक है। सो दैट व्हाट इज टॉक अबाउट। अब वर्ल्ड का टॉप परफॉर्मर कौन है, जैसे क्लास का परफॉर्मर होता है तो वर्ल्ड का भी होगा, इट इज आइसलैंड। इट इज रैंक 1, बट रिमेंबर दैट वन थिंग, देयर इज नो कंट्री which achieve full parity। आरबीआई में डायरेक्ट क्वेश्चन था कि विच कंट्री हैज अचीव द फुल पैरिटी, तो द आंसर इज नन। ओके, विद रिस्पेक्ट टू द ऑल वर्ल्ड दे हैव परफॉर्म बेटर, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड। सी हियर देयर इज नो यूएसए। ओके, इस टोटल 10 में यूएसए नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। तो स्टार्टिंग के 5 आप याद रख सकते हो, ठीक है। आइसलैंड इज द टॉप परफॉर्मर। ये पूरे लगभग 15 सालों से, जब से ये रिपोर्ट है तब से ये टॉप परफॉर्म कर रहा है। तो दैट इज अ वेरी ह्यूज अचीवमेंट फॉर अ कंट्री, राइट, बिकॉज इट इज बीइंग सेड कि कहते हैं ना, क्लास का टॉपर रहा है तो इतने सालों से टॉपर रह रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, राइट। बट ओवरऑल लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस से थोड़ा कम उसने परफॉर्म किया। इंडिया की भी बात करेंगे कि एक्चुअल में ऐसा क्या हो गया कि रैंक उसकी कम हो गई। ओके, सो दिस इज अबाउट आइसलैंड, ठीक है। आप देख सकते हो कि उसने कैसे 78% थी, अब नियरली 92.6 है। तो बहुत सारी चीजों का रिपोर्ट डेटा है, अब पढ़ना है तो आप यू कैन रीड इट
बट दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। अब लास्ट कौन आया? लास्ट आए हैं हमारे पड़ोसी, दैट इज पाकिस्तान। ओके, सो लास्ट इज 148। लास्ट ईयर सूडान था, इस बार पाकिस्तान है। तो आपको बताना चाहिए सूडान, चैड एंड ईरान। ईरान इज 145। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि हु इज लास्ट। अब रीजनल रैंकिंग में देखें, रीजनल रैंकिंग इन द सेंस कि पूरी कंट्रीज को देखें और जो डिवीजन हमने किए हैं, तो आप कहीं ना कहीं कोट कर सकते हो। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम, फॉर वन डे एग्जाम। तो वो पूछेंगे कि इसको कितने साल लगेंगे, इसको कितने साल लगेंगे। बस इससे आपको एक आइडिया मिल रहा है कि लैटिन अमेरिकन रीजन is very much improving, North American region is very much improving or not, Europe is improving, कौन सा है जो सबसे लास्ट है, सेंट्रल एशिया, तो उसको कितना टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में। तो दिस इज काइंड ऑफ अ रेस विच एवरीबडी इज वॉकिंग डाउन और रनिंग इन। तो देखिए सी, अब रीजनल वाइज हमने क्लास टॉपर तो बता दिया। अब रीजनल वाइज जैसे होता है, जैसे अब क्लास का निकला, पूरे स्कूल का डेटा निकला, फिर पूरे स्कूल का डेटा निकला, फिर पूरे स्टेट का निकला, उसी तरीके से रीजनल रैंकिंग में कौन सबसे टॉप पे है, वो है नॉर्थ अमेरिका। लास्ट टाइम यूरोप ने बेस्ट किया था, तो नॉर्थ अमेरिका ने इस बार इम्प्रूव किया है। तो दिस इज दिस, ओके, यूरोप। लास्ट में कौन है? मिडिल ईस्ट, अफ्रीका। अफ्रीका इज इन अ वेरी लोअर सेंस, ठीक है। जैसे यहाँ पे सूडान है, उसकी लास्ट रैंकिंग है, बट दे आर डूइंग समथिंग गुड एफर्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ दीज 4 पैरामीटर्स। तो उन्होंने पॉजिटिव शोकेस किया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ किया नहीं है और देयर रैंक इज लो, दैट इज नॉट अबाउट। तो रैंक से इतना जज मत करना कि कोई रीजन कैसा है, बट अगर रिपोर्ट को थोड़ा पढ़ोगे तो यू विल रियलाइज कि इतना भी बुरा किसी ने नहीं किया है। एंड ठीक है, सो लेट्स कम्स टू द पॉइंट, द फाइनल पॉइंट, दैट इज इंडिया। इंडिया को देखते हैं। इंडिया की रैंक 131 है, जो कि 129 थी, और इसका स्कोर 64.1 है। तो सोचो, वर्ल्ड का अगर 68.8 है और हमारा पैरिटी स्कोर 64.1 है, इट्स नॉट अ बैड वन, राइट, अगर देखा जाए तो। द प्रॉब्लम इज व्हाट, जो 129 से 131 हम गिर कैसे गए? एक्चुअली में हम नीचे नहीं गए, ठीक है, वी डिड नॉट डू समथिंग बैड, हमसे दूसरे लोगों ने परफॉर्म अच्छा किया है। कहते हैं ना, क्लास में हम अपने आप को टॉपर समझ के चल रहे थे, तो वी थिंक कि दूसरा तो कुछ कर नहीं रहा होगा, तो अदर पर्सन हैज इम्प्रूव। जैसे बांग्लादेश ने बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाया है। अब आप बोलोगे वहां तो कू चल रहा है एंड देयर इज नो द पावर, पावर स्ट्रगल इज देयर, बट स्टिल इन जेंडर गैप पता नहीं उनकी रैंक कितनी अच्छी कैसे है, दैट इन दे आर इन 124। आई एम शॉक्ड एज वेल। सो लेट्स सी, बट जो डेटा पॉइंट है उसके रिफ्लेक्शन से तो कह नहीं सकते। सी, 131 आउट ऑफ 131 आउट ऑफ 148, तो इट्स 3 डाउन। मतलब ऐसे भी दे देता है कि स्टेटमेंट भी दे सकता है कि दिस टाइम इट स्लिप्स डाउन टू 3। ओके, ओवरऑल स्कोर क्या है? 64.4, 1% कह सकते हो। दिस इज 1, ओके, and it is 0.3 slips down, okay, positive, up by, oh sorry, right, yes, so this is the overall score of India, okay. India, the global is this. See the world ranking, see here in the regional level their neighbors, तो नेबर्स में देखोगे सबसे ऊपर ये, तो दे कैन आस्क यू इन साउथ एशियन रीजन इंडिया हैज रैंक फर्स्ट, राइट, और सेकंड? नो, इट इज बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, दीज आर वे अबव देन इंडिया, ओके। तो रैंकिंग देख सकते हो आप, दिस इज सबसे लास्ट तो पाकिस्तान है, तो उसकी तो जरूरत ही नहीं, ठीक है, 64.4। सो यू कैन सी दिस इन अ रीजनल लेवल, आपका डेटा यहाँ से हो सकता है। अब उन 4 पैरामीटर में उसका स्कोर क्या है, इंडिया का स्कोर? सी, एजुकेशन लेवल पे हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हेल्थ लेवल पे हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट इकोनॉमिक लेवल पे जैसे वर्ल्ड भी नहीं कर पा रहा, तो हम भी थोड़ा पीछे ही हैं। पॉलिटिक्स, ठीक है, बहुत ही पीछे कह सकते हो, बट स्टिल
there are much more important what do you say, we are very far ahead than where we were, right? पहले से तो बहुत अच्छा ही हमने थोड़ा बहुत किया है, तो एंड वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव इट मेनी सेक्टर्स। तो आप इसमें देख सकते हो कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में कौन कौन सी स्कीम है, किस सेक्टर पे बात कर रहा है कंट्री, राइट? तो यू कैन सी। तो आपको बस ये याद रखना कि इन चार पैरामीटर में इंडिया का स्कोर क्या रहा है। जैसे पिछले साल ये था, हमें आपको ये याद नहीं करना डिड वी इम्प्रूव्ड और नॉट, पिछले साल के मुकाबले डिड वी इम्प्रूव्ड और नॉट। ओके, सो दिस डेटा दैट्स यू नीड टू रिमेम्बर। तो इस बार हमने इन तीनों में तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस रहा है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, बट हमारा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट गिरा है, मतलब वो कुछ पॉइंट से गिरा है। इन रैंक्स पे भी मत जाओ, बस ना याद रखो तीनों ने अच्छा परफॉर्म किया है। सी ओवरऑल तो हमारा नीचे गया है, राइट, बट इन तीनों में अच्छा स्कोर किया है, बट द पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में हम थोड़ा कम गए हैं। देयर आर सम पॉइंट्स, राइट, पॉइंट समथिंग लाइक दिस वी गॉन डाउन। तो अभी स्कोर में दिखा दूंगी आपको सारे का। सी दिस how you will write economic participation and opportunities. So you can quote Indian data, you can quote our efforts, your schemes related to, जैसे मैंने बोले कितने थे, 4 dimension with 14 indicators, right? These are indicators within it. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, आप इंडिया की रिपोर्ट से, LFS रिपोर्ट से लिख सकते हो कि नहीं हमारा ये है। वेज इक्वालिटी, जैसे हमारे DPSP में बोलते हैं, राइट, देयर विल बी इक्वल वेज फॉर सिमिलर वर्क, बट आर वी डूइंग दैट, आर वी एक्चुअली गेटिंग दैट? तो ये पॉइंटर्स बन जाएंगे आपके। एस्टिमेटेड अर्न इनकम, इसकी जरूरत। लेजिस्लेचर या सीनियर पोजीशन में, कहाँ पे, CEO पोजीशन में। आप सिंदूर का एग्जांपल देख सकते हो, दैट द डिफेंस सेक्टर्स इज मूविंग अहेड एंड गिविंग द टॉप अपॉर्चुनिटीज। आपने रिसेंटली न्यूज में देखा होगा, बहुत से आर्मी व्हाट वी कॉल इट इज मेन सेंटर्स, राइट, मेन डिवीजन डिपार्टमेंट्स को टॉप हेड वुमेन्स करती हैं, जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट में, तो उनको पोजीशन दिए जा रही, बट वो भी एक नेगेटिव साइड भी ले जा रहा है। क्यों? दे आर गिविंग दी सॉफ्ट रोल्स, राइट, हेल्थ में अच्छा रैंक दी तो हेल्थ में दी। as such is not negative in that much way, but still जैसे इस रिपोर्ट में बात कही गई है उसके अकॉर्डिंग आप ऐसे आंसर फ्रेम कर सकते हो। प्रोफेशनल एंड टेक्निकल वर्कर्स, तो प्रोफेशनल और में जैसे IT सेक्टर्स में आपको मिलती है नहीं, दैट यू कैन कोट इट। सी लिटरेसी रेट, हमारा लिटरेसी रेट अच्छा चल रहा है, राइट, प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी में एजुकेशन बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। सी वी इम्प्रूव, ये 1 शो करना मतलब पैरिटी है, यू सी सच गुड साइन। तो हमारा ये चीज अच्छी चल रही है एजुकेशन। हेल्थ में तो सेक्स रेशियो कैसा चल रहा है, दैट इज कितने टोटल बर्थ में वुमेन्स बच पा रही हैं। हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जैसे कि आशा वर्कर हेल्प करा रही है, एजुकेशन पे भी हेल्प हो रही है लोगों को, यू नो द स्कीम्स दे आर रनिंग फॉर मातृ क्या वंदना योजना काइंड ऑफ अ थिंग, तो वो सब है, आप वो सपोर्ट कर सकते हो। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, तो पार्लियामेंट में जैसे अधिनियम बिल आ जाएगा तो 1/3 किसको मिल जाएगा, वुमेन को, इन दी लोकसभा एंड दी स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली। जैसे हमारे पंचायत में तो है, आपने पॉजिटिव तो कर दिया कि हम 1/3 दे रहे हैं, बट द पुरुष प्रधान सभा इज ऑल्सो देयर, यू नो, क्या कहते हैं, जैसे पंचायत सीरीज में क्या है वो, दैट इज व्हाट वी कॉल अ वुमेन इंस्टेड ऑफ, सी नाम तो वुमेन का है बट चला कौन रहा है, उसका हस्बैंड, तो दैट इज अ नेगेटिव पॉइंट ऑफ इट, राइट। तो वुमेन इन मिनिस्ट्रियल पोजीशन कितने में मिल रही है, सबको मिल तो रही है, जैसे बहुत सी पोजीशंस मिल रही है, बट लाइक एजुकेशन सेक्टर्स और सॉफ्ट रोल्स मिल रहे हैं, बट आर वी गिविंग देम इन अ फाइनेंशियल सेक्टर? हम तो कोट कर सकते हैं यस आर फाइनेंस मिनिस्टर इन दिस, तो पॉजिटिव है। अब नेगेटिव कहाँ पे है वो आपको चेक करना पड़ेगा। ईएस विद फीमेल हेड, मतलब कि
टोटल हेड पोजीशंस पे कौन है, हमारा तो प्रेसिडेंट ही फीमेल है, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, दैट्स अ गुड साइन, राइट? सो दैट इज व्हाट, तो यू कैन कोट इट, बट इसमें हमने थोड़ा इम्प्रूव नहीं किया है, कुछ पॉइंट्स हम नीचे गए। सो सी दीज आर मेनी इंडिकेटर्स, तो आप उसको मिक्स करके आंसर लिख सकते हैं। डोंट कोट योर स्कीम्स unnecessarily without any agenda and points. Try to link with these point and this. आप कह रहे हो पेट्रियार्कियल सोसाइटी की वजह से ये गिर रहा है, बट हाउ एंड वेयर यू कैन सॉल्व, थोड़ा जब क्रिटिक करोगे आप, पॉजिटिव लिखोगे तो नेगेटिव भी उसकी अराउंड लिखिए, सो दैट योर आंसर वुड बी बैलेंस आउट। ओके, सी दिस दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, सी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन हम 0.9% ऊपर गए, बट स्टिल वी आर लो बिकॉज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम है और लीडरशिप रोल्स कम। वाई? बिकॉज देयर इज अ ग्लास सीलिंग इफेक्ट। ग्लास सीलिंग मतलब कि हम रेस में दौड़ तो रहे हैं, बट देयर इज अ काइंड ऑफ अ सीलिंग जिसको हम पार नहीं कर पा रहे, है ना? इट्स और यू कैन से दैट कि हम दौड़ तो रहे हैं, पर ये जो फिनिश लाइन है ना, कोई आगे बढ़ा दे रहा है, कोई आगे बढ़ा दे रहा है। दैट्स व्हाट यू कैन कोट इट, राइट? सी एजुकेशन में हम स्ट्रांग है, फीमेल लिटरेसी है, टर्शरी लेवल पे हो रहा है। देखो, हमने बेटी तो बचा ली, हमने बेटी को एनरोल भी करवा लिया, एनरोलमेंट भी में भी प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है? हम रख नहीं पा रहे हैं प्राइमरी एजुकेशन में। फीमेल्स आर लीविंग द स्कूल बिकॉज ऑफ द सैनिटेशन प्रॉब्लम्स। ओके, सो दैट्स यू कैन कोट। इंडिया का थोड़ा बहुत डेटा है, आप इसको यूज कर सकते हो। तो गर्ल्स, बेटी तो बचा ली, बेटी बचाओ हो गया, पर एनरोलमेंट नहीं हो पा रहा। अगर एनरोलमेंट हो पा रहा है तो हायर एजुकेशन में स्टेम एजुकेशन फेल हो रहा है। इस पे भी एक आर्टिकल आया था, द जेंडर पैरिटी ओवर द स्टेम, तो यू कैन डू दैट। मैथमेटिक्स पे आया था एक आर्टिकल, ठीक है? द जेंडर पैरिटी ओवर द मैथमेटिक्स की वुमेन्स को मिल तो रही है सब कुछ, वाई देयर इज अ माइंडसेट नो बैरियर कि वुमेन्स को तो मैथ्स, वुमेन्स कहाँ से मैथ्स करेंगी, तो समथिंग लाइक ऑफ दैट, ठीक है? तो वो उन आर्टिकल्स को रीड करके आप थोड़ा बहुत एडिशन कर सकते हैं, ठीक है? तो वुमेन्स आर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग, और इवन गवर्नमेंट इज पुशिंग टू गेट द एजुकेशन। उन्हें वो तो मिल रहा है, पर जॉब्स नहीं मिल रही, जॉब्स मिल रही है तो हायर पोजीशंस नहीं मिल रही। तो दीज आर ग्लास सीलिंग इफेक्ट्स, और देयर इज अ बैरियर, ठीक है? तो ये प्रॉपर डेटा है, दिस इज नॉट आई मेड इट अप। ओके, हेल्थ एंड सर्वाइवल बहुत अच्छा रेशियो चल रहा है, बेटर लाइफ हेल्थ एक्सपेक्टेंसी है। आशा वर्कर हेल्पर्स है लोअर लेवल पे, रूरल लेवल पे, अर्बन एरिया पे भी हेल्प है, सब कुछ है। आप जनधन अकाउंट कह सकते हो, आयुष्मान भारत का एग्जांपल दे सकते हो कि बिकॉज ऑफ दीज एफर्ट्स हमारा ये सब चीजें अच्छा हो रहा है, ठीक है? सो स्टिल वो अच्छी चीजों पे चल रहा है, बट हमारा रॉन्ग एरिया कहाँ पे है? पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। यहाँ पे हम 0.6 से हम नीचे गिरे, बिकॉज हमारा जो पार्लियामेंट पोजीशन है वहां पे 13.8% हुआ है, फेल फ्रॉम 14। मिनिस्ट्रियल रोल्स गिरे हैं जो कि 30% था 2019 में। तो यू कैन कोट दिस डेटा, ठीक है? सो दैट्स व्हाट यू कैन डू, or try to remember with this on all those things. Okay, so if you see for the India solution, you can quote anything else, or any data that you can quote from India, right? Or there is a quote that no country can truly flourish if it stifle the potential of its women and drive itself or the contribution of half its citizen. So that's what is कि आप वुमेन को रोकोगे तो आप कहीं ना कहीं आपकी अपनी हाफ पॉपुलेशन को ग्रोथ से रोक रहे हो, और इकोनॉमी में वर्क करने से रोक रहे हो, ठीक है? सो दैट व्हाट इट इज। सी दिस इज अबाउट इंडिया, पर ग्लोबल लेवल पे मैं आपको थोड़ी सी लाइंस बता देती हूँ कि देखो ग्लोबल में एडवांस जेंडर पैरिटी किस सेक्टर में हो रही है जहां पॉजिटिव चीज है। सी देखो, ग्लोबल लीडरशिप रोल में तो ग्लास सीलिंग है, बट स्टिल कहीं ना कहीं हम टेक्निकल वर्क में बढ़ रहे हैं,
मिनिस्ट्रियल पोजीशन भी बढ़ रही हैं, वुमेन्स को मैनेजर और लेजिस्लेटर पोजीशंस में मिल रहा है, पार्लियामेंट में भी मिल रहा है, बट देयर इज स्टिल द ग्लास सीलिंग। ये सिर्फ 41% ग्लोबल वर्कफोर्स का हिस्सा है हमारी वुमेन्स, ओके, एंड ओनली दिस पोजीशन इज, और मोर ऑफ अ सॉफ्ट जॉब और केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दे रहे हैं उन्हें, ठीक है। हम क्योंकि ये सिर्फ बड़े तो हैं, इट इज एन पॉजिटिव साइन, बट आप क्रिटिक भी तो लिखोगे, तो दिस इज दिस। एक जैसे लास्ट ईयर मेंस में आया था एआई से रिलेटेड, मेंस में क्वेश्चन, राइट। इस बार केयर इकोनॉमी इज वेरी मच इन न्यूज, सो वी कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चन फ्रॉम हेयर एज वेल कि केयर इकोनॉमी पे आपको पढ़ना जरूर चाहिए, बिकॉज इंडिया ऑल्सो हैज रिलीज सम डेटा इन इट्स इकोनॉमिक सर्वे अबाउट द केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम केयर इकोनॉमी को कैसे टैप कर सकते हैं, उसके पोटेंशियल को कैसे टैप कर सकते हैं, तो दैट्स व्हाट इट इज ऑल अबाउट, ठीक है। बिल्डिंग अ केयर इकोनॉमी, तो देखो अगर जैसे मेल जैसे ब्रेक लेता है ना अपनी जॉब से, तो इफ ही इज टेकिंग वन टाइम in his life or like in his career job, women are taking frequently, it's like 4 times, right? So that is a glass ceiling effect, और care economy में हमारा पोटेंशियल सही नहीं चल रहा। इट्स लाइक कि हम वुमेन को लैडर तो दे रहे हैं, बट उसके हाथ में एक बच्चा भी थमा दे रहे हैं कि ओके यू क्लाइंब विद दैट, ओके अगर आपको चढ़ना है तो चढ़ो, बट विद दैट थिंग। तो आप इस केयर इकोनॉमी को टैप कैसे कर सकते हो इन अ पॉजिटिव सेंस, कि जैसे क्रैच फैसिलिटीज होती हैं, यू गिव अ ब्रेक टू द वुमेन्स, आप वो कर सकते हो, है ना। वो सारी चीजें के लिए आप इसको कैसे पॉजिटिव बना सकते हो, दैट्स डिपेंड अपॉन यू। तो आप केयर इकोनॉमी में प्रॉपर एक आंसर लिख सकते हो, एक प्रॉपर एसे आ सकता है, एक प्रॉपर क्वेश्चन आ सकता है फॉर GS3, दैट इज योर इकोनॉमिक पे आ सकता है, ठीक है। जैसे लास्ट ईयर एआई पे आया था, क्योंकि एआई पे बहुत और इस बार भी आ सकता है कि हाउ वी कैन ह्यूमनाइज द एआई, राइट, हाउ वी कैन यूज द एआई फॉर जॉब्स, दैट कैन आल्सो बी आस्क्ड, राइट। सो दिस इज द लास्ट ईयर डेटा, सी आप ये कोट कर सकते हो, ये लाइन्स हैं, दीज आर लाइन फ्रॉम द रिपोर्ट्स एज वेल। वी आर रिटर्न ऑन एजुकेशन, हम वुमेन को एजुकेशन दे रहे हैं। देखो जैसे हम MIT से पास हो रही है, ग्रेजुएट हो रही है, स्टैनफोर्ड से पढ़ रही है, ऑक्सफोर्ड से पढ़ रही है, दे आर गेटिंग वी आर एबल टू टैप अ हाई पोटेंशियल वुमेन्स, बट हम बिग ब्रेन्स तो मिल गए उनको, बट स्मॉल रोल्स मिल रहे हैं, वापस जाके तो उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है। मार्केट में जब उतर रही हैं तो उनको कोई जॉब नहीं हो, अच्छी जॉब नहीं है, अगर मिल रही है तो फिर वो सीनियर पोजीशन में है। तो इट्स लाइक वुमेन्स आर टॉपर इन दिस क्लास, राइट, यू हर्ड इट, राइट। आपकी क्लास में भी वुमेन टॉपर रही होगी, बट अब रियल लाइफ में वो उसको नहीं होगा, राइट। सो दिस इज व्हाट डिस्पैरिटी इज, ठीक है। दिस इज ऑल, और यू कैन कोट इट एज लाइक इट इज अ पैराडॉक्स सिचुएशन, इजंट इट, कि वी आर गिविंग देम एजुकेशन, वी आर गिविंग देम, बट जॉब्स में वो रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा। तो जब रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा तो कोई फायदा क्या है, फायदा क्या है, आप ये बोलोगे, है ना। वुमेन्स विल से बट वी आर स्टिल डूइंग समथिंग गुड, राइट, एजुकेशन मिल रहा है, बट स्टिल वी नीड टेक, इट विल टेक टाइम टू रीच दैट पोजीशन और दैट पैरिटी। सो somewhere down the line we are middle, so we should say good efforts, somewhere we are behind but we are improving, right। तो धीरे धीरे करके वो भी हो जाएगा। जैसे लाइन दे सकते हो, जैसे पॉलिटिकल पावर एम्पावरमेंट है, आपने सीट तो दे दी, आपने लॉज तो बना दिए, ठीक है, आपने सब लॉज बना दिए, बट इट इज अ क्वाइट पार्लियामेंट बिकॉज यू आर नॉट गिविंग अ रोल टू वुमेन्स। सी जैसे इंडिया में सुधा मूर्ति जी आ रही हैं स्पीच देने के लिए, तो व्हाट आर दीज, हाउ शी इज बीन इलेक्टेड टू इट, हाउ शी इज बीन नॉमिनेटेड टू इट। तो आप ये सब कोट कर सकते हो, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, जब आप रियल लाइफ के ऐसे एग्जाम्पल्स को डालते हो तो वो आप देख सकते हो। सॉफ्ट पोर्टफोलियोज, तो आप इंडिया के रिस्पेक्ट में क्या कर सकते हो, नो वी आर गिविंग देम द बेटर पोर्टफोलियोज, यस वी आर फार बिहाइंड दैट बट स्टिल वी आर डूइंग बेटर। पर वर्ल्ड में ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है, वर्ल्ड में सॉफ्ट रोल्स दिए जा रहा है, तो हम एक पॉजिटिव साइड इंडिया का दिखा सकते हैं। देखो जब पॉजिटिव दिखाना हो तो ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट से दिखाओ कि हाँ लगे कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग है, और जब थोड़ा कम दिखाना हो आंसर में, जस्ट
get a mild point. Don't be so judgmental over it. Okay. See, लॉ तो है पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है. हॉलो इक्वालिटी है, राइट? हमने लॉ तो बना दिया, हमने पॉस्को बना दिया, हमने सब कुछ प्रोटेक्शन के लिए सब बना दिया, बट हम उसको सही से यूज नहीं कर पा रहे, यूटिलाइज नहीं हो रहा, वुमेन के एफर्ट्स के लिए नहीं हो रहा. इट्स लाइक हमने बिल्डिंग में फायर एक्सटिंग्विशर तो लगा दिया, बट वहां किसी को नहीं है पता कि उसे चलाते कैसे. ठीक है. दिस इज लाइक दिस थिंग. ट्रेड में जैसे ट्रेड है टेक्नोलॉजी में, जैसे कि कोविड आया तो वुमेन्स आर द वन हु एब्जॉर्ब दैट शॉक्स. अगर उन पे ज्यादा इफेक्ट पड़ा, अगर वुमेन्स भी होती और मेंस भी होते तो किसी फैमिली पे इतना अब्जॉर्ब कर पाते, राइट? जैसे इसकी जॉब चलेगी, इसकी रहती, अच्छा होता ना कि वो अब्जॉर्ब होते. मेनी लाइव्स बीइंग डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज दे वर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब दैट शॉक. ठीक है. तो वो चीजें आप लिख सकते हैं, राइट? रिकमेंडेशन आप क्या दे सकते हो? रिकमेंडेशन, व्हाट कैन रिकमेंड आफ्टर दिस रिपोर्ट? रीस्किल करते जाना चाहिए हमें. एआई को भी यूज कर सकते हो कि वी शुड ह्यूमनाइज इट. जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जब स्पीच दी थी तो ही टॉक्ड अबाउट दैट हाउ यू कैन ह्यूमनाइज इट. तो आप वो सब लिख सकते हो. जेंडर रिस्पॉन्स बजटिंग, मोर वुमेन इन द पॉलिटिकल पाइपलाइंस, बेटर केयर सिस्टम, लाइक केयर इकोनॉमी को पोटेंशियली आप इसका कोई डेटा पॉइंट लिख के उसको कोट कर दो. दैट्स व्हाट यू कैन डू, राइट? दैट्स व्हाट. थोड़ा अगर डेटा चाहिए तो दिस इज दैट कि अगर 230 तक हमें इसको करना पड़ेगा तो हमें कम से कम इतना पर ईयर इतना पैसा चाहिए वर्ल्ड को, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट, तब जाके हम ये सब कर पाएंगे. अदरवाइज we will not be able to do that. So conclusion is simply these things कि it's a race. And see, it is a race. It is not about to win, who wins. It's about every gets to run. कि हम सब दौड़े और सब, we should not wait. Everybody run for it, for the positive mindset. Right? That's what you can do. In conclusion, आप और भी लिख सकते हो. Gender parity is about smart economy, fair society. Right? 50-50 remain a dream unless government or business or citizen acts together. So to reach that position, what is important? It is not about the सिर्फ गवर्नमेंट कर ले. बेटी तो बचा रहे हो, बेटी को तो वहां स्कूल तो नहीं भेज रहे हो, फिर आप उसको आगे स्टेम एजुकेशन में तो नहीं भेज रहे हो, आप जॉब्स के लिए तो नहीं भेज रहे हो, आप बोल रहे हो नहीं केयर इकोनॉमी करो, आप तो बचाओ उसको. तो दैट्स व्हाट यू कैन डू. So this is a fully dimensional approach that you need to take to reach this disparity to the equality. Okay, so this is all about. Let's discuss it in a very brief or very crisp approach in one pager note. I know it's not a 143 minutes video, but एक रिपोर्ट को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने के लिए इतना तो लगता है. ठीक है. और अगर पॉजिटिव नेगेटिव लेना तो आप लिख सकते हो पेट्रियार्कल सोसाइटी, ग्लास सीलिंग, पिंक जॉब्स, राइट? These are the things. और ये सारे जो words हैं, try to use these words. Don't use simply one patriarchy or like those things. Days are gone for those words. Okay. तो नए vocabs को use करो. ठीक है. So let me take you to the last position कि आपको ये चीज अच्छे से याद हो जाए. So this is all about. Let's begin that. See how I have created this in a one pager format. So you should remember what is the name of a report, who released it, World Economic Forum, कब करता है, since it is doing from 2006 annually करता है. ठीक है. What is talk about gender parity, okay, disparity, right, between whom, between the two sexes, okay, gender gap between male and female, ठीक है, with respect to the living standard. और कैसा मार्क्स देता है 0 to 1 या 0 to 100%. Okay, what is the rank of India? India is 131, जो पिछले साल से 3 पॉइंट नीचे गिर गई. Okay, it is slips down from the earlier one. वर्ल्ड की देखें तो टोटल कितनी कंट्रीज को इसने कैलकुलेट किया? इसने 148 कंट्रीज को लिया. 0 to 1, 0 to ये फुल पैरिटी को रिफ्लेक्ट करता है. कैसे पैरामीटर्स? 4 पैरामीटर पे ये जज करता है. जैसे ये उसके 14 इंडिकेटर्स हैं. 4 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एजुकेशन अटेनमेंट, हेल्थ, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट. तो ग्लोबल का ये है, ये दोनों नियरली पैरिटी की तरफ है, बस इन दोनों पे काम नहीं हो रहा है या काम बहुत धीरे धीरे चल रहा है.
सो दिस इज व्हाट इंडिया के रिस्पेक्ट में इंडिया की पोजीशन 131 पोजीशन, लास्ट ईयर क्या थी 129 थी, इस बार 64.4 है, तो टोटल भी ये नीचे गिरा है। सी फर्स्ट एंड वन थिंग मोर, इंडिया हैज नॉट डन समथिंग रॉन्ग जिसकी वजह से उसकी पोजीशन गिरी है। इट इज बिकॉज सम ऑफ द कंट्रीज हैज इम्प्रूव्ड बेटर, जैसे नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इन्होंने अपनी पोजीशन, सबसे ज्यादा बांग्लादेश ने अच्छी परफॉर्मेंस की है, इसकी वजह से श्रीलंका, इनके कुछ एफर्ट से इनकी रैंक इंप्रूव हुई है और हमारी नीचे गई, कि हम कहते हैं ना टॉपर बने घूम रहे हैं, बट स्टिल वी डू नॉट सी कि दूसरी कंट्री भी हमसे आगे निकल सकती है। तो काइंड ऑफ अ थिंग सिर्फ याद करने के लिए कीजिए, डोंट गेट बी सो जजमेंटल ओवर इट। ओके, तो 64 है। किस किस में इम्प्रूव किया है हमने? तीनों पैरामीटर्स पे इम्प्रूव किया है, बट दिस पैरामीटर हैज डाउन। ठीक है, पॉलिटिकल पैरामीटर में हमने कम किया है, बिकॉज कि एक तो पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा और मिनिस्ट्रियल पोजीशंस पे भी डाउन हुआ है। ठीक है, so this is what is all about. And one thing more, that no country has achieved the full parity. You should remember a very key point. रैंक तो 1 आइसलैंड की है, बट स्टिल कोई कंट्री ऐसी नहीं है जिसने फुल पैरिटी अचीव की हो। इट इज अराउंड 92.6%। फिनलैंड, ठीक है, और ये यूके, यूएसए में नहीं है टॉप 10 में। लास्ट में कौन है? पाकिस्तान, सूडान, चैड एंड ईरान। ठीक है, रीजनल वाइज नॉर्थ अमेरिका ने अच्छा इंप्रूव किया है, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट अफ्रीका लास्ट में है। सो दिस इज, यू कैन टॉक अबाउट। कुछ पॉइंट्स आपको याद करने हैं कि वुमेन जो वर्क फोर्स है वो टोटल 41.2 है। हम 4x केयर इकोनॉमी पे ज्यादा बैरियर क्यों है? बिकॉज ऑफ दी केयर इकोनॉमी, राइट। करियर ब्रेक्स वुमेन ज्यादा लेती हैं बिकॉज टू केयर देयर फैमिलीज एंड देयर किड्स, राइट। वी प्रोवाइडिंग अ बिग ब्रेन्स एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स में, मतलब हम एजुकेशन तो दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी में वुमेन टॉप तो कर रही हैं, बट जॉब में रिफ्लेक्ट नहीं आ रहा। स्मॉल रोल्स आर गिवन, सॉफ्ट जॉब्स आर गिवन, सो दीज आर सॉफ्ट पोर्टफोलियो। पार्लियामेंट में भी हम दे रहे हैं, बट सॉफ्ट पोर्टफोलियोज दे रहे हैं। तो दैट्स यू कैन डू। और कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव आप थोड़ा सा डेटा ऑफ एसडीजी रिपोर्ट या फिर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन से इंडिया का क्रिएट कर सकते हैं। सो दैट विल बी योर 1 पेजर नोट। सो दिस इज द 1 पेजर। इस तरह से आप इसे क्रिएट कीजिए और इसे याद रखिए। बहुत की पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, जैसे कि आपको एग्जाम्पल भी क्वेश्चन का दे देती हूँ। डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि ये कौन रिलीज करता है, आरबीआई में पूछा गया है, मैंने फिर बता रही हूँ। ऐसे सेंटेंसेस दे देंगे, दे विल गिव अ ब्लैंक एंड दे विल से दिस एक्स रिपोर्ट इज रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम and it works upon the gender parity in which parameter they have not performed well, तो वो लिख देगा इस वाले पैरामीटर में। तो आप बोलोगे ये तो मुझे याद ही नहीं है, राइट। इंडिया हैज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया, तो आपको याद होनी चाहिए एग्जैक्ट। दूसरी दैट इन विच पैरामीटर दे हैव इम्प्रूव्ड और नॉट, तो ऐसे क्वेश्चन बना देंगे कि इन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन दे हैव नॉट इम्प्रूव्ड इट, तो दिस इज ट्रू और फॉल्स। ऐसा भी मतलब बनाने के बहुत तरीके हैं क्वेश्चंस को, बट स्टिल इकोनॉमिक में, हेल्थ में, इसमें तो अच्छा किया है, बट इन 2 में नहीं किया है। इज इट ट्रू और नॉट, स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाइज। सो इस तरीके से वो क्वेश्चन दे सकते हैं। सो यू कैन रिमेम्बर दिस होल डेटा एंड दिस इज अ 1 पेजर नोट दैट यू कैन क्रिएट आउट ऑफ दिस। आई नो दिस वीडियो has been, थोड़ी बड़ी होगी, बट स्टिल आई विल से सजेस्ट यू, इफ यू रीड सम रिपोर्ट, कोई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है तो उसको ज्यादा टाइम देना पड़ता है, अदरवाइज इट डज नॉट रिक्वायर दैट मच ऑफ अ टाइम। ओके, सो आई होप I've been able to explain you everything and you can quote it and you can utilize this data in for your exam. Thank you.